Hello friends, so let's start another question of accounting equation, right? So first question is commenced business with capital of rupees 80,000. 80,000 की capital से business शुरू किया गया है, right? So here first of all I'll be writing the accounting equation over here. A is equals to C plus L, right? So A is equals to C plus L में the very first thing that we are going to write over here will be first cash कितना आया 80,000, right? So cash 80,000 and capital is also 80,000, no liability, so my equation is tallied. Then next second 20,000 deposited with bank and opened an account. बैंक में हमने 20,000 deposit करे, right? So here it will be cash 80,000 minus bank, क्योंकि बैंक में गए पैसे, so 20,000 that came to 60,000. बैंक में पैसे आए, so बैंक अलग से दिखाएंगे 20,000. कैपिटल इज स्टिल देयर 80,000 जिसमें कोई चेंजेस नहीं है. लायबिलिटी में देयर इज नथिंग एंड हियर आल्सो इट विल बी 80,000 एंड माय इक्वेशन इज टैलीड. देन थर्ड गुड्स ऑफ 40,000 परचेज फ्रॉम हिमानी ऑन क्रेडिट. हमने हिमानी के पास से गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, राइट? सो गुड्स आर कमिंग इन ऑफ रुपीज 40,000 एंड हिमानी नाम की क्रेडिटर हुई, राइट? सो हियर माय एंट्री विल बी लाइक दिस. कैश 60,000, bank 20,000, stock 40,000, so total comes to 1,20,000. Over here my capital still remains 80,000 and over here my liability plus creditor Himani comes to 40,000. So the total is 40,000 again, rather 1,20,000 again. So again my total is getting tallied, my equation is tallied, right? Chalo, then next fourth goods of 30,000 purchase for cash. हमने cash से goods buy करे, right? So cash is going out and goods are coming in. So here cash 60,000 minus purchase 30,000 comes to 30,000. Bank is again the same 20,000 and stock is there of rupees 40,000 plus purchase rupees 30,000, so comes to 70,000, correct? So again it will be what? Total will be 1,20,000. Capital is still same 80,000 and the liability side is also same. Creditor Himani is there 40,000, so 40,000 and still my equation is getting tallied, right? Chalo, then next fifth goods of 35,000 sold for 55,000 to जसलीन ऑन क्रेडिट. हमने 35,000 की गुड्स बेचे 55,000 में जसलीन को क्रेडिट पे, राइट? यानी कि शी हैज नॉट पेड इट येट, तो एक डेटर जसलीन नाम का खड़ा हुआ, राइट? सो माय एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस ओवर हियर. फिफ्थ कैश 30,000, बैंक 20,000, stock 70,000 was there, minus सेल किया हमने 35,000 का, so it came to 35,000. That's all. So over here my total will be 85,000, correct? Right. And capital will be, just a minute, yeah, 80,000
जस्ट अ मिनट, सेल किया यस, एंड जसलीन नाम की डेटर खड़ी हुई ना, आई फॉरगॉट टू राइट जसलीन, सो जसलीन नाम का डेटर हुआ, दैट इज ऑफ 35,000. So again my total comes to 1,20,000. Capital is still there of 80,000, and creditor Himani is also there, 40,000. So total comes to 40,000. Correct, easy. Chalo then next. गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 18,000 इन कैश, मानी कि हमें पैसे मिले राइट, और हमने 10,000 के गुड्स बेचे. ओवर हियर हमने जस्ट अ मिनट, इन आवर लास्ट ट्रांजेक्शन, इट इज माई मिस्टेक, इन आवर लास्ट ट्रांजेक्शन 35,000 के गुड्स हमने जसलीन को 55 में बेचे हैं राइट. सो हियर इट विल बी different, something different will be there. Jasleen नाम का debtor will be of rupees 55,000 and not 35,000. So it will be of rupees 55,000. Here it has to be 1,40,000. And one more thing, can I say मुझे 20,000 का profit हुआ, and profit हो तो वो definitely कहाँ जाएगा, इधर जाएगा 20,000. So here it has to be 1 lakh. Is it completely all right? I forgot that we have sold the goods to Jasleen for 55,000. I written 35 only, but it was 55,000. So 20,000 का profit that we need to recognize, और वो ultimately belong करता है owner को, तो definitely we are going to recognize it in our capital, right? चलो then next is goods हमने बेचे हैं 10,000 के goods 18,000 में, यानी कि 18,000 में. So my entry will be something like this. Cash is of rupees 30,000. प्लस सेल किया है तो पैसे मिलेंगे 18,000, कम्स टू 48,000. बैंक इज देयर 20,000. स्टॉक ऑफ 35,000 वॉज देयर, जिसमें से मैंने सेल किया है 10,000 का, सो दैट इज 25,000. एंड डेटर जसलीन इज देयर 35,000. So 60 and 20, 80, and for 128, 1,28,000. Over here capital was 1 lakh plus, just a minute, 25, 41, sorry, it is plus profit of rupees 8,000, and that comes to 1,08,000, plus liability में creditor Himani of rupees 40,000. Total comes to 40,000 only. So it will be 1,48,000. Again my equation is getting tallied. Jasleen नाम का debtor is of 55 and not 35, right? So चलो then next. 7th, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 रिटर्न टू हिमानी. हमने गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 हिमानी को रिटर्न कर दिए, सो परचेज रिटर्न होगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश 48,000, बैंक 20,000, स्टॉक 25,000, जिसमें से हमने 2,000 परचेज रिटर्न किया, सो 23,000. एंड डेटर जसलीन इज देयर 55,000, सो कम्स टू 1,46,000, करेक्ट. एंड ओवर हियर कैपिटल विल बी स्टिल सेम, कुछ उसमें चेंज नहीं है, 1,08,000. एंड ओवर हियर कुछ क्रेडिटर लायबिलिटी में क्रेडिटर हिमानी वॉज देयर 40,000 माइनस परचेज रिटर्न किया है 2,000 का, so that came to 38,000, and the total again comes to 1,46,000. I hope it is completely all right. Chalo, let's move ahead. 8th number. गुड्स ऑफ 4,000 रिटर्न्ड बाय जसलीन. जसलीन ने हमें रिटर्न करे कुछ 4,000 के गुड्स, राइट. सो हियर माई एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश इज देयर ऑफ रुपीज 48,000. बैंक इज देयर 20,000.
स्टॉक इज देयर 23,000 प्लस सेल्स रिटर्न हुआ तो गुड्स आए ना 4,000 के 27,000 एंड डेटर जसलीन 55,000 वॉज देयर माइनस सेल्स रिटर्न किया है उसने 4,000 का, सो दैट कम्स टू 51,000. करेक्ट. Over here it will be same 1,46,000. Capital also it is same 1,08,000 as there is no changes. Plus liability also it is same, creditor Himani of rupees 38,000 and total comes to 38,000 only, so no change. I hope it is completely all right. Let's move ahead. 9th number का question. अकाउंट्स हैव सेटल विथ हिमानी एंड जसलीन. हिमानी और जसलीन के साथ हमने क्या किया है, अकाउंट सेटल कर दिए हैं, राइट. ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में बोला गया है. सो लेट्स डू इट. हिमानी को वी आर सपोज टू पे 38, सो विल पे. एंड जसलीन के पास से वी आर सपोज टू टेक 51, सो विल टेक, राइट. सो हियर लेट्स डू इट. कैश इज देयर ऑफ 48,000, करेक्ट. माइनस हिमानी को पे किया कितने का, 38,000 का, करेक्ट. और जसलीन के पास से कितना आया, 51,000. आई एम डूइंग इट इन अ कंबाइंड वे. सो प्लस जसलीन इज गिविंग मी हाउ मच, 51,000, करेक्ट. आई होप इट इज कंप्लीटली ऑल राइट. 38 मैंने हिमानी को पे करे और जसलीन के पास से मैंने 51,000 लिए, राइट. सो टोटल कम्स टू 61,000. स्टॉक of 27,000 and that's all क्योंकि debtor Jasleen is now gone. So and bank is there, yes of course bank is there of 20,000. So my total will be 1,08,000. Over here my capital will be same 1,08,000. एंड कैन आई से द लायबिलिटी इज नाउ नथिंग क्योंकि हमने हिमानी को पे कर दिया. सो इट विल बी डैश. सो अगेन माई इक्वेशन इज गेटिंग टैलीड. चलो देन नेक्स्ट. विड्रॉ 5,000 फ्रॉम बैंक. बैंक में से हमने 5,000 विड्रॉ करे. बोला नहीं है ऐसा कि पर्सनल यूज करे के लिए करे या वट एवर द रीजन वॉज. हमने 5,000 विड्रॉ करे बैंक से. कहना इसे हाथ में कैश आई 5,000 और बैंक में से कैश गई 5,000, करेक्ट. सो माई एंट्री ओवर हियर वुड बी, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश, अरे जस्ट अ मिनट, कितनी 48,000 थी और कितना हमने विड्रॉल करा था, जस्ट अ मिनट लेट मी जस्ट चेक इट, कंफर्म इट वंस. 5,000, राइट. सो 5,000 कैश आई और बढ़ी हमारे पास. सो कैश वुड बी 48,000 प्लस बैंक से विड्रॉ करे कितने, 5,000. सो इट कम्स टू 53,000, करेक्ट. ऐसा नहीं बोला गया है विड्रॉल्स ड्राइंग्स है मानी कि पर्सनल यूज़ के लिए है तो हम यहीं पे लिखेंगे, राइट. फिर नो, कैश वॉज नॉट 48, इनफैक्ट इट वॉज 61 इन द अबव. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश 61 प्लस 5, दैट इज 66,000 ओवर हियर. स्टॉक वुड बी सेम एज इट वॉज, दैट इज 27,000. And from bank we have withdrawn 5,000. So 20,000 minus cash withdrawn 5,000. So 5,000 comes to 51,000. Sorry, 15,000. And again my total will be same. This side also capital mein there is no change. So it will be same 1,08,000. And here also in liability there is nothing as of now. So it will be nothing. Is it completely all right? Is it completely clear? चलो फिर आगे बढ़े. Question number 10 is done. Rather, transaction number 10 is done. Let's look at the 11th number का transaction. What does it say? Salary 4,000 paid by check. हमने salary pay करी. Salary is our expense और expense बढ़े तो profit will be decreased, right? So over here, as I have paid it from check, so यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा
Cash is 66,000. Stock is 20. Just a minute. Cash is 66,000. Stock is 27,000. Bank is 15,000. Out of which we have paid the salary of 4,000. So it will be 11,000. And total will be 1,04,000 over here, correct? And over here in my capital, can I say expense हुआ profit कम होगा? So 1,08,000 minus salary paid 4,000 comes to 1,04,000. Again there is no liability, so it will be dash. I hope it is completely all right. चलो फिर आगे बढ़े. 12th, कमीशन रिसीव्ड इन कैश रुपीज़ 3,000 एंड 2,500 आउटस्टैंडिंग. हमने 3,000 का कमीशन रिसीव कर लिया है, लेकिन 2,500 का इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. येस, डेफिनेटली इट इज़ रिसीवेबल, मिलना अभी बाकी है पर मिला नहीं है, राइट? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अच्छे से समझना है इसको. असेट साइड पे कैश पे 66,000, करेक्ट, प्लस कमीशन रिसीव्ड is 3,000, correct? So it will be 69,000 over here. Fine. Stock is there of 27,000. Bank is there of 11,000. And can I say 2,500 का commission is receivable? It is going to be received in future, right? हमें future में मिलना बाकी है. So here I'll be writing commission receivable, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है. कैन आई से इट इज माई असेट. अंडरस्टूड. सो हियर इट विल बी, द टोटल विल बी 1,09,500. एंड ओवर हियर ऑन माई कैपिटल साइड, कैन आई से मेरी कैपिटल वॉज ऑफ रुपीज 1,04,000 प्लस कमीशन, इवन दो इट इज नॉट रिसीव, बट कैन आई से कमीशन रिसीव तो होने वाला, इनकम होने वाली, प्रॉफिट बढ़ने वाला है. सो इट विल बी 5,500 टोटल. सो इट विल बी 1,09,500 अगेन. एंड हियर देयर विल बी नो चेंज. सो लायबिलिटी में कुछ भी नहीं. चलो देन नेक्स्ट 13th, रेंट पेड इन कैश 4,000 एंड 1,500 आर आउटस्टैंडिंग. हमने कैश में 4,000 पे तो कर लिया है, पर 1,500 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है. वी हैवंट पेड इट येट. इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 1,500. सो हियर माई एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस. जस्ट अ मोमेंट. इट विल बी cash was 69,000, correct, minus rent paid. 4,000 का रेंट हमने पे करा. So it came to 65,000. Stock is there of rupees 27,000. Bank is there of rupees 11,000. And commission receivable is still there of rupees 2,500, correct? अब समझना 4,000 मैंने पे कर लिया है, that is all okay. कैन आई से मैंने 4,000 का पे किया है, पर 1,500 का आई एम स्टिल येट टू पे. मुझे पे करना पड़ेगा, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, करेक्ट? एंड 4,000 और 1,500 दोनों मेरे इस करंट ईयर के खर्चे हैं. अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ा तो माई प्रॉफिट विल डिक्रीज, correct? So here in my capital it will be something like this. Just a moment. यहाँ पे मेरी capital was 1,09,500 minus rent, even paid was 3,000 and not paid is 1,500. So it total will be 4,500, correct? कैसे आया पता चल रहा है ना? इधर let me write it in bracket. 3,000, not rather 3,000 नहीं था ना, 4,000 था. लेट मी जस्ट चेक. आई नीड टू कन्फर्म. गलती से हम अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम कर दे तो फिर गड़बड़. हाँ 4,000 था. तो सो इट विल बी लाइक दिस. 4,000 प्लस 1,500.
सो टोटल विल बी 5500. करेक्ट. टोटल 5500 का खर्चा हुआ, खर्चा होगा, प्रॉफिट कम होगा. सो अगेन इट विल बी व्हाट, 1,04,000. करेक्ट मैम. तो यहाँ पे इक्वेशन विल नॉट बी टैलीड. आई नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी टैलीड. यहाँ पे देखो लायबिलिटी में लिखना बाकी अभी भी. रेंट टू बी पेड, येट टू पे, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेएबल, राइट. सो हियर आई विल बी राइटिंग रेंट payable or maybe rent outstanding, whatever you want to write. 1500. So 1500, and here it will be 1,05,500. You can check it out, it will be tallied. Chalo, right. Let's move ahead. गुड्स डोनेटेड ₹2,000. गुड्स हमने डोनेट करे हैं. डोनेट करे मानी क्या हुआ, हमने गुड्स किसी को फ्री में दिए कि नहीं से अपने लिए, तो डोनेशन एक्सपेंस हुआ. एक्सपेंस होगा तो माई प्रॉफिट विल डिक्रीज. अगेन एक एंट्री वहां पे जाएगी और दूसरी गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ ₹2,000. सो गुड्स में से भी माइनस करेंगे. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश 65,000. जस्ट अ मोमेंट. 65,000. Stock 27,000 minus donation 2,000 comes to 25,000. Bank 11,000 and commission receivable, जिसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, 2,500. So it will be 1,03,500 over here. And over here on my capital side, 1,09,500 is there, minus donation expense of 2,000. It was not 1,09,500, it was 1,04,000. So 1,04,000 minus 2,000 comes to 1,02,000. And here my liability has to be same. Rent payable 1,500. So 1,500 over here, and again my equation will be tallied, right. Chalo, then let's move ahead. 15th. फर्नीचर ऑफ 15,000 परचेस फ्रॉम प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट. हमने फर्नीचर बाय करा है 15,000 का प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट से. प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट को पेमेंट करा है, पैसे दिए, ऐसा कुछ भी बोला गया नहीं है. सो हियर माय एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश 65,000. स्टॉक 25,000. बैंक 11,000. commission receivable 2,500 and furniture of ₹15,000. हमने फर्नीचर बाय करा ना 15,000 का, तो वी नीड टू राइट इट डाउन. सो 15,000 विल बी देयर. I hope the screen is clearly visible, right. So the total will be 1,18,500 over here. यहाँ पे कैपिटल इट हैज़ टू बी सेम, कुछ चेंज नहीं है उसमें भाई. सो 1,02,000 का 1,02,000 प्लस लायबिलिटी में रेंट पेएबल वॉज देयर. फाइन. चलो, रेंट पेएबल इज देयर 1,500 का, दैट इज ओके. बट कैन आई से प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट नाम का क्रेडिटर भी हुआ. अब we are supposed to pay to Preksha Furniture Mart of ₹15,000. So total will be 16,500. Is it completely already clear हुआ एकदम से सही से? Let's move ahead then. कॉलेज फीस ऑफ डॉटर पेड ₹6,000. 6,000 की कॉलेज फीस ऑफ डॉटर, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि ड्राइंग्स. तो क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे. करेक्ट. सो लेट्स डू इट. सो हियर कैश 65,000 minus drawings 6,000.
comes to 59,000, stock 25,000, bank 11,000, commission receivable 2,500, furniture 15,000. correct. So here it will be kuch 1,12,500. Here in my capital it was 1,02,000 minus drawings 6,000. Is it getting completely clear? सही से समझ में आ रहा है आपको? correct. So it will be 1,06,000 or 96,000, and over here the total is also 96,000, and over here liability will be same. Rent payable 1,500, and Preksha Furniture Mart 15,000 comes to 16,500. it remains same. Chalo, then next 17th would be whatever is given. Let's see. 500 बैंक हैज क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 200 फॉर बैंक चार्जेस. 500 बैंक ने हमें दिए और 200 हमसे ले लिए, 200 बैंक चार्जेस के, राइट. सो 2 एंट्रीज विल बी देयर इन 17th. इट विल बी लाइक दिस. 17th A करके आई एम डूइंग एंड देन B, राइट. कैश 59,000, stock 25,000, bank 11,000 plus interest 500 comes to 11,500. commission receivable 2,500, furniture 15,000, and total comes to 1,13,000. correct. Over here capital was 96,000 plus interest, क्योंकि इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड 500. so total will be 96,500, and over here liability will remain same. Rent payable 1,500, Preksha Furniture Mart 15,000, total comes to 16,500. Is it completely all right? Let's move ahead then. B part of this only. Cash 59,000, stock 25,000. this is 59 ना, गलती से कोई 54 ना लिख ले इसलिए. then bank 11,500 minus charges 200 comes to 11,300. commission receivable 2,500, furniture 15,000, total comes to 1,12,800. correct. 200 रुपए गए. and here capital was 96,000 minus charges 200 comes to 95,800, and here on my liability side it is going to be same, and total will be 16,500 only. कुछ change इसमें नहीं आने वाला है. चलो then next 18th. 2,500 received in advance for interest. हमने एडवांस में रिसीव करा है, दो इट इज़ नॉट ऑफ करंट पीरियड, करंट ईयर का है ही नहीं, पर हमें एडवांस में मिल गया है. कहना इसे मुझे एडवांस में मिल गया है, मीनिंग देयर बाय आई एम सपोज टू गिव द लायबिलिटी, आई एम सपोज टू रीपे द लायबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं. रादर आई कैन से आई एम सपोज टू गिव द बेनिफिट. मुझे किसी ने एडवांस पैसा दिया है तो कहना इसे उसके लिए मुझे एडवांस जो मिला है उसका पढ़ाना बाकी है. अगर मुझे कोई आके फीस दे दे एडवांस में 2 साल की, कहना इसे वो
सारा मेरा इसी साल का पैसा है, द आंसर इज नो. आई नीड टू बाइफरकेट इट इनटू 2 years बिकॉज मुझे अभी भी सामने वाले स्टूडेंट को बेनिफिट देना बाकी है, राइट. सो हियर ऑल्सो 2500 वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, बट इट इज अवर लायबिलिटी, वी आर येट टू गिव द बेनिफिट. सो इट विल बी लाइक दिस. Cash 59,000 plus interest received in advance 2,500, so 61,500. Bank 11,300. Commission receivable 2,500. Furniture 15,000. That's all. Okay. और यार येट टू राइट द स्टॉक ना, स्टॉक रह गया, थॉट सो कुछ तो रह गया. 25,000 करेक्ट. सो माई टोटल हैज़ टू बी 1,15,300 करेक्ट. ओवर हियर कैपिटल मेरी कितनी थी, 95,800. उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा. 95,800 की 95,800 विल बी देयर. उसमें कुछ नहीं हुआ है, हमें एडवांस मिला है. इस साल हम इनकम नहीं दिखा सकते, इस साल का प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, अभी बेनिफिट देना बाकी है सामने वाले बंदे को. सो इट विल बी लाइक दिस. लायबिलिटी में रेंट पेएबल 1,500, प्रेक्षा मार्ट 15,000 and interest received in advance 2,500. So total comes to 19,000. Is it completely all right? There was some totaling error above. 96,500 was there and I wrote 96,000, so it just cleared it. ये जनरल एरर्स है जो तुम लोग भी करोगे एग्जाम में. यू शुड नॉट डू इट, तो थोड़ा ध्यान में रखना. हियर आई कैन ईजिली मेक इट करेक्ट. एग्जाम में ये नहीं होगा, और एग्जाम में जब इक्वेशन टैली नहीं होगा तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों नहीं हुआ. यहाँ पे कामली आई कैन सॉल्व इट, क्या फाइन कहाँ गलती हुई है कैलकुलेट करने में, एंड आई कैन रिकरेक्ट इट. बट यू कैन नॉट इन एग्जाम, क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा. तो थोड़ा शांति से. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस ₹2,000. हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करे हैं, दैट टू इन एडवांस, राइट. एडवांस में किसी को पे कर दिए हमने. सो हमें बेनिफिट मिलना बाकी है. वी हैव पेड इट इन एडवांस, वी आर सपोज टू रिसीव द बेनिफिट येट. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओवर हियर. सो कैश 61,500 minus advertisement expense that we have paid in advance, that is 2,000, comes to 59,500. Bank 11,300. Commission receivable 2,500. Furniture 15,000. Stock 25,000. And now advertisement expense paid in advance, we are yet to receive the benefit, so we need to show it in the asset side itself कि भाई ये benefit हमें future में मिलना बाकी है. So my total will be same, unlike 15,300. Here also capital will be same, 96,300. Here also liability will be same, 19,000. So my equation is tallied and I have done the full sum, right. पूरा question हमने कर लिया अच्छे से. I hope you all are clear with whatever we have done in this whole big question, and we'll be doing some small question in our coming session. Thank you.